એન્ડ કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના હરણી તળાવમાં બોટિંગની દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું ઘોર નિંદ્રામાં રહેલું તંત્ર જાગ્યું છે। રિવરફ્રન્ટ પર ચાલતા બોટિંગ માટે જરૂરી લાયસન્સ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ન હોવાથી બોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારીનો મુદ્દો વિપક્ષ દ્વારા બોર્ડ બેઠકમાં ઉઠાવવામાં આવ્યો। વડોદરાની દુર્ઘટના બાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ બોટિંગ કોન્ટ્રાક્ટરોને તમામ પ્રકારના લાયસન્સ રજૂ કરવા માટે આદેશ કર્યો, પણ આશ્ચર્યજનક બાબત તો એ છે કે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડનો ઘોર બેદરકારીના કારણે છેલ્લા એક વર્ષથી ફાયર બ્રિગેડ સહિત અન્ય ઓથોરિટીના લાયસન્સ વિના શહેરીજનોના જીવના જોખમે 3 સ્પોટ ઉપર બોટિંગ ચાલતું હતું। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી દ્વારા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઉપર બોટિંગની સેવા પૂરી પાડતા બી કોન્ટ્રાક્ટરોને એનઓસી આપેલી નથી। કોન્ટ્રાક્ટરોએ 1 મહિના પહેલા જ ફાયર એનઓસી મેળવવા માટેની અરજી કરી છે। પોલીસ લાયસન્સ પણ મેળવેલા નથી, છતાં બોટિંગ ચાલતું હતું। સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઉપર વલ્લભ સદન, ઉસ્માનપુરા અને એનઆઈડી પાસે એમ 3 સ્થળોએ બોટિંગ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, જેમાં વલ્લભ સદન ખાતે, ઉસ્માનપુરા ખાતે 2 સ્થળો એક જ કોન્ટ્રાક્ટરને બોટિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલો છે। જ્યારે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ એનઆઈડી પાછળ કાયાકિંગ બોટિંગ 9 મહિનાથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। અમે આ 3 સ્થળોએ બોટિંગ બંધ કરાવી દીધું છે। આ 3 સ્પોટ ઉપર બોટિંગ કરવા માટે જરૂરી પોલીસ લાયસન્સ, R&B લાયસન્સ, ફાયર બ્રિગેડ લાયસન્સ, મેરીટાઈમ બોર્ડના લાયસન્સની જરૂરિયાત હોય છે, જે પૈકી ફાયર અને પોલીસના લાયસન્સ રજૂ કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરોનો આદેશ આપેલો છે। આ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ટેન્ડરમાં મૂકેલી શરતો મુજબ લાયસન્સ રજૂ કરવા જરૂરી છે, પણ આ તમામ લાયસન્સ મેળવ્યા વિના જ બોટિંગ ચાલતું હતું। મહત્વની બાબતો એ છે કે રિવરફ્રન્ટમાં બોટિંગ કરતી વખતે વ્યક્તિ બોટમાંથી પડી જવાની ઘટના પણ બની ચૂકી છે, પરંતુ સદનસીબે હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। વિપક્ષ દ્વારા માંગ કરવામાં આવે છે કે લાયસન્સ વિના ચાલતા તમામ કોન્ટ્રાક્ટ બંધ કરી દેવા જોઈએ। ટેન્ડરની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી તમામ ઓથોરિટીના લાયસન્સ વિના બોટિંગ ચલાવવામાં આવતા હતા, જેથી શરત ભંગની કાર્યવાહી કરીને તમામ કોન્ટ્રાક્ટર રદ કરી દેવા જોઈએ। નવેસરથી ટેન્ડર કરવા જોઈએ। આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારી દાખવનાર કોન્ટ્રાક્ટર અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પગલાં પણ લેવા જોઈએ। हरनी तालाब के हादसे के बाद कहीं ना कहीं बड़ा दुखद हादसा था। पूरा देश ही उस हादसे पर मौन था, लेकिन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़े शर्म का काम किया है। उस हादसे के बाद आप देखोगे तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हस्तक साबरमती रिवरफ्रंट की बोटिंग को बंद कर दिया गया है। और ये साबरमती नदी की बोटिंग इसलिए बंद पड़ी हुई है कि पिछले 1 साल से वो बिना लाइसेंस के वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट चलाया जा रहा था। मतलब पिछले 1 साल से अहमदाबाद शहर की जनता को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहीं ना कहीं रिस्क में रखा हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पुलिस लाइसेंस, R&B लाइसेंस, फायर ब्रिगेड लाइसेंस और मैरीटाइम बोर्ड का लाइसेंस लेना काफी आवश्यकता था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया और अभी तक वो बोटिंग को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में मांग की गई है कि इतने बड़े हादसे यदि हो रहे हो और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में साबरमती नदी में जब बोटिंग का कार्य 1 साल से चल रहा हो और कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस ही नहीं था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी हो कहीं ना कहीं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल में करीबन 3 हादसे साबरमती नदी में हो गए और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बिना, लाइसेंस के बिना यदि कॉन्ट्रैक्ट चलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री की जवाबदारी है। इतने बड़े हादसे के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अचानक नींद से जगा। उन्होंने कांकरिया लेक पे और साबरमती नदी पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट चला रहा था उसे लाइसेंस के लिए कहा गया कि आपका लाइसेंस बताओ। कांकरिया लेक पर लाइसेंस था जिसको अभी चालू रखा गया है, लेकिन शर्म की बात तो ये थी कि 5 दिन से साबरमती रिवरफ्रंट का कॉन्ट्रैक्टर अभी तक लाइसेंस के जो प्रोसीजर थे उसको फॉलो नहीं कर पाया, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया, इसलिए 5 दिन से वहां का रिवरफ्रंट पर बोटिंग को बंद कर दिया गया। देश में भारतीय जनता पार्टी की टैक्स विभाग के लिए 2 नीतियां रही है। एक तरफ अमीरों को फायदा पहुंचाना और गरीबों को नुकसान पहुंचाना। जो गरीब व्यक्ति जो रोज कमाकर खाता है, मीडियम क्लास जिसकी फैमिली हो, जो रोज कमाकर खाते हो, जिनका 18,000 20,000 टैक्स बाकी हो, उनके घर को, उनके कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सील किया जाता है। लाख दिखाकर 1 दिन में टैक्स भरने की धमकी दी जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे कई मुद्दे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सामने आए। जो गरीब जनता जिसका 10-10 हजार रुपए टैक्स बाकी है, उनकी प्रॉपर्टी को सील किया गया। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक जो नीति है जो अमीरों के लिए है, वो विपरीत तरीके से कार्य करती है। एक तरफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अडानी का 12 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, गांधी कॉर्पोरेशन का 12.5 करोड़ रुपए टैक्स बाकी है, ट्रांस इंडिया का 6 करोड़ का टैक्स बाकी है,
कैलिको मिल का 24 करोड़ का टैक्स बाकी है, प्रसाद मिल का 8 करोड़ टैक्स बिल बाकी है, अमृता मिल का 30.5 करोड़ टैक्स बिल बाकी है। कुल मिलाकर बंद मिलों का ही 149 करोड़ टैक्स लेना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभी तक बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये सारे मुद्दे कोर्ट में चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी यहाँ ये उठाती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक लीगल डिपार्टमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे एडवोकेट है, हाई कोर्ट में भी हमारे एडवोकेट है, निचली कोर्ट में भी हमारे एडवोकेट है, जिनको मोटी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन इन केसों पर अभी तक कई सालों से कोई सुनवाई की नहीं जा रही है। तो ये साफ बताता है कि जो भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, जिनका करोड़ों रुपए टैक्स बाकी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो व्यक्ति जिसके पास हैसियत नहीं है कि कोर्ट में वकील रखने के, जिसके पास पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाल आंख दिखाता है और टैक्स वसूलता है। टैक्स नहीं दिया जाता तो इनकी प्रॉपर्टी को ताला लगा दिया जाता है। अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।